Good morning, student. Our next chapter, chapter number 3, is fiber to fabric. So, in this chapter, we will study how to process fiber from wool as well as from silk. Okay. So, some processes are very important. Before that, I want you to know what are fiber and what are the two other types of fiber. Okay. So, there are two types of fiber. The number one is a natural fiber and the next one is synthetic fiber. So, from the name of this word, natural fiber means nature. Anything which we obtain from nature, that is unnatural. ठीक है? Okay, तो the fiber which are obtained from plant and animals, they are called natural fiber. For example, we obtain cotton and jute from plant and we obtain wool and silk from animal. Okay, so these are natural fiber. Now the next one is synthetic fiber. So those fiber which are prepared by men in laboratories, they are called synthetic fiber. For example, nylon, polyester, acrylic, etc. Okay, and in detail we will study about these in our next class, in class 8. Okay, so the first one is wool. So wool, as you all know, wool come from sheep, and not only sheep, they also come from goat, yak and some other animals also. Okay, तो wool सिर्फ नहीं sheep से नहीं मिलता है, goat से भी मिलता है, yak से भी मिलता है, camel से भी मिलता है. ठीक है. So जो sheep wool है और yak wool, it is very common in Tibet and Ladakh, and as well as the Angora wool, which is famous in hilly region like Jammu and Kashmir. Okay. इसके अलावा अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट विच इज़ यूज टू मेक फाइन शॉल, जिसको हम पश्मीना शॉल कहते हैं, आपने सुना भी होगा. ओके. In spite of these, fur also come from camel, alpaca, llama, etc. Okay. But in India, sheep is very famous for it. Now there are two forms of hair on the sheep. Okay. So first one is the coarse beard hair, means जो थोड़े hard होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं. And the second one is fine soft under hair, और under hair जो कि fine और soft होते हैं, which are close to their skin. Okay. So जो wool आपका बनता है, it is made up of this fine quality. Okay. Now it is very important you to know about this next term, that is selective breeding. So, what is selective breeding? From the name of this word selective breeding, selective means to select. So, the process of selecting a parents for obtaining a special character in their offspring, this is called a selective breeding. That means पेरेंट शीप्स को सेलेक्ट किया जाता है टू ऑब्टेन फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैरेक्टर इन देयर अपकमिंग, इन देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ताकि ऑफस्प्रिंग में एक स्पेशल कैरेक्टर मिले दोनों का. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सिल्क. जैसे कि वूल आपका नेचुरल फाइबर है, सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फॉर्म. Now this breeding and raising in order to obtain silk from the silkworm, it is called sericulture. Understand? So wool and silk both are natural fiber, and we will study in detail how to process fiber from this wool and fiber from the silk in this chapter. So first we will study how to process fiber into wool. Okay, so for this, first is shearing. That means the first method is to remove the fleece of the sheep along with the thin layer of the skin. So सबसे पहले sheep के hair को remove किया जाता है along with a thin layer of skin.
अब आप सोचेंगे कि अगर स्किन को हम शेव करेंगे, स्किन को हम रिमूव करेंगे तो शीप को पेन होगा. नो, like we cut our hairs or we cut our nails, सेम ही शीप के भी हेयर्स को रिमूव किया जाता है. ठीक है, जो अपर लेयर रिमूव की जाती है स्किन की, दैट इज ऑलरेडी डेड. ठीक है, उसमें डेड सेल्स होते हैं, सो उनको पेन नहीं होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ द शीप इज कॉल्ड shearing. Okay, this is the first method for processing fiber into wool. After that, we'll do scouring. Scouring means to remove dirt, grease and dust from the hair removed from the sheep. जो sheep के hairs remove की गई है उसमें से dirt, grease और dust को remove करना. This process is called scouring. Okay, and this is the second process. After that, third process is sorting. Sorting means to separating. So, the process of separating the hair of the sheep according to the texture. कोई मोटे टेक्सचर का है, कोई फाइन हेयर्स है, कोई बहुत ज़्यादा फाइन है, सबको सेपरेट आउट करना, इसको सॉर्टिंग कहते हैं. एंड दिस इज द थर्ड प्रोसेस. ओके, आफ्टर दिस क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. इसके बाद बर्ड्स क्लीन किया जाता है, बर्ड्स को हटाया जाता है. हैव यू सीन ऑन योर वुलन क्लोथ छोटे छोटे से बर्ड्स नजर आते हैं आपको, छोटे छोटे से जाने जिनको आप खींच खींच के बाहर निकालते हो, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स. द फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं उसको हम बर्ड्स कहते हैं. सो फोर्थ प्रोसेस इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड इन दिस प्रोसेस स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. ठीक है, उस हेयर में से उस बर्ड्स को रिमूव किया जाता है. ठीक है, एंड उसके बाद फिर से इसकी स्काउरिंग होती है. द फाइबर आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड. ओके, आफ्टर दिस वूल इज गो फॉर डाइंग. डाइंग प्रोसेस मीन्स टू डाई, मतलब कलर उस पर आ जाए, टू डाई इट. ओके, सो नाउ द फाइबर आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स. ठीक है, डिफरेंट कलर्स में वो डाई होता है. एंड द लास्ट वन इज रोलिंग ऑफ वूल. Rolling of wool means the fiber obtained is straightened out, combed and rolled into a yarn. जो फाइबर अब आपको मिला उसको स्ट्रेट किया जाता है यूजिंग कॉम एंड फिर उसको रोल किया जाता है टू मेक अ yarn. So this is the process of converting fiber into wool, and this is very important and you have to learn. The first method is shearing, second one is scouring, the third is sorting, then fourth cleaning of burrs, then dyeing and then rolling of wool. So the wool which is commonly available in the market is sheep wool. Okay, so the several breeds of sheep are found in different part of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Okay, सिर्फ यही सोर्स नहीं है, देर आर अदर सोर्स ऑफ वूल ऑल्सो. और वो मैंने जैसे कि अभी आपको पीछे बताया, याक वूल इज ऑल्सो कॉमन एंड इट इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. इसके अलावा अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. ओके, इसके अलावा कश्मीरी गोट, जो अंडर फर होते हैं कश्मीरी गोट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उसका अंडर फर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स. उससे शॉल्स बनाई जाती है एंड दैट इज अ वेरी फेमस शॉल दैट इज कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. ओके, नाउ द हेयर ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. इसके अलावा हम के जो कैमल के हेयर है उसको भी वूल की तरह यूज किया जाता है. And llama and alpaca, these from them also obtain wool and they are found in South America. They are also eel wool. Okay, पर कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप विच प्रोवाइडेड वूल. ओके, हम कुछ इंडियन शीप्स ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जस्ट नोट डाउन द इंडियन ब्रीड्स ऑल्सो. जस्ट मेक अ कॉलम. First write down name of a breed
of sheep. Okay. Now, quality of wool and name of the state. Where found. Okay. So first one is Lohi. लोही गुड क्वालिटी वूल देता है, गुड क्वालिटी वूल, एंड दे आर फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब. ओके, ये राजस्थान और पंजाब में मिलते हैं. नेक्स्ट इज रामपुर बुशर. इसकी जो फ्लीस होती है ये ब्राउन होती है, ब्राउन फ्लीस, एंड दे आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. Okay, now the next one is Nali, and the carpet wool famous है इसका, और ये राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में फेमस है. ओके, नेक्स्ट वन इज बकरवाल, एंड बकरवाल इज फेमस फॉर वुलन शॉल्स. एंड दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट वन इज मारवाड़ी. इसका जो वूल होता है थोड़ा कोर्स होता है, एंड दे आर फेमस इन गुजरात. नेक्स्ट वन इज पतनवाड़ी फॉर हॉइजरी. ये हॉइजरी के लिए फेमस है, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन Gujarat. Okay, so these are the name of the breeds and the quality of wool they produce, as well as the name of the state where they found. And as I already told you, the wool which obtained from sheep are reared, then breed, then hair is cut, then processes it to wool, so which we have discussed earlier also. So for that, rearing and breeding is very important, which I told you, that is called selective breeding. Okay, in which the parents are selected to get the special character in their offspring. Okay, now as I told you, silk is also obtained from silkworm. That means silk is also a animal fiber. Okay, so silk is also a animal fiber. And the rearing, breeding and the raising in order to obtain silk is called सेरीकल्चर. ठीक है, सेरीकल्चर को आप ये भी बोल सकते हैं सिल्क फार्मिंग. सिल्क फार्मिंग भी आप बोल सकते हैं सेरीकल्चर को. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, रेयरिंग अ सिल्क फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग वूल, इट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. एंड सेरीकल्चर इज वेरी ओल्ड इन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है, एंड इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल. ठीक है, लॉट ऑफ सिल्क, जो बहुत ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता था इंडिया कॉमर्शियल स्केल पे. सो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है. तो सिल्क मॉथ कैसा होता है, कैसे उसकी लाइफ हिस्ट्री है वो जानते हैं. राइट डाउन सिल्क लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, formation of silkworm. Life history of silk moth for the formation of silkworm. So in this, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, the female silk moth
they lay eggs, they lay eggs, and they lay eggs on mulberry leaves, on mulberry leaves. Okay, they lay eggs on mulberry leaves. Then the eggs are hatched, वो eggs जो है hatched होते हैं, and it take time to hatch, and they are hatched into a very small larva. ठीक है, so the eggs are hatched into very small larva within a week. Within a week, एक वीक के अंदर अंदर वो हैच हो जाते हैं इनटू अ लार्वा विद इन अ वीक. एंड जो लार्वा है, द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ आर कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म. ठीक है, यही लार्वा क्या है आपका ऑफ सिल्क मॉथ आर कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. ठीक है, फिर द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द सेम ट्री, ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज. ओके, इसके बाद यही सिल्कवॉर्म फीड करता है, मलबेरी लीव्स को खाता रहता है और फीड करके वो बड़ा हो जाता है. Okay, and in the previous video I already show you the life cycle of silkworm. ठीक है, so in that, after that there is a development of cocoon. When the silkworm or caterpillar is ready to enter the next stage of its development, that is called pupa, it first weave a net. ओके, वो नेट वीव करते हैं टू होल्ड इटसेल्फ. सबसे पहले तो वो नेट वीव करते हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए. ठीक है, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, वो अपना एट लाइक अ एट, वो अपना साइड टू साइड अपना हेड को स्विंग करते रहते हैं. ठीक है, और स्विंग करते करते वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवॉर्म सिक्रीट फाइबर. ठीक है, सिल्कवॉर्म जो है फाइबर सिक्रीट करता है और वो फाइबर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर. जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो हार्ड हो जाता है एंड बिकम अ सिल्क फाइबर, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर, और यू कैन से सिल्क थ्रेड. ठीक है, सोन द सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. ओके, ये प्रोसेस उसकी चलती रहती है, फाइबर वो बनाता रहता है एंड फिर वो अपने आप को कवर कर लेता है एंड किस में चेंज हो जाता है, टर्न इनटू अ प्यूपा. एंड जो ये कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद सिल्कवॉर्म कंटिन्यू टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा इनसाइड द कोकून टू फॉर्म सिल्क मॉथ. ओके, तो उसके बाद सिल्क मॉथ बन जाता है. नाउ इसके बाद होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. तो सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्कवॉर्म जो है डेवलप होता है इनसाइड द कोकून, जिसको कि हम बोलते हैं प्यूपा, एंड इट इज नॉट अलाउड टू मेच्योर इनटू एन एडल्ट सिल्क मॉथ. इट इज नॉट अलाउड. सो एज सून एज द कोकून इज फॉर्म, इट इज यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर. जैसे ही कोकून बन जाता है तो वो उसको किस लिए यूज किया जाता है, टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, एंड द डेवलपिंग सिल्कवॉर्म, जिसे हम प्यूपा बोल रहे हैं, गेट्स किल्ड, वो मर जाता है. सम ऑफ द सिल्कवॉर्म, जिसे हम प्यूपे बोलते हैं, आर हाउएवर अलाउड टू लिव एंड मेच्योर इनटू सिल्क मॉथ सो दैट दे कैन ले एग्स टू प्रोड्यूस मोर सिल्कवॉर्म. ठीक है, तो कुछ जो है हम छोड़ देते हैं, कुछ सिल्कवॉर्म को हम छोड़ देते हैं ताकि वो मिच्योर हो और फिर अगेन वो दे कैन ले एग्स टू प्रोड्यूस मोर सिल्कवॉर्म. बट जो हमने बाकी का जो प्यूपा था, जो कोकून बन चुका था, उसको हम सिल्क फाइबर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं. तो उसके अंदर जो प्यूपा होता है वो मर जाता है. ठीक है, क्योंकि
आप उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से यूज करोगे, वो प्यूपा जो अंदर होगा वो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। सो देर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर्स, ठीक है। सारे सिल्क मॉथ सेम नहीं होते, बहुत सारे मोस्टली क्या होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं एंड फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट टेक्सचर, क्योंकि वो भी एक दूसरे से दिखने में अलग है, तो जो सिल्क वो प्रोड्यूस करते हैं उसका टेक्सचर भी अलग होता है। कुछ कोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बहुत ही स्मूथ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ शाइनी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको वूल का बताया, तो देर आर सम सिल्क जैसे सार सिल्क, कोसा सिल्क, मोगा सिल्क, these are obtained from the cocoon spun by the different type of moths, ठीक है। but the most common silk moth is the mulberry silk moth, ठीक है। जो मलबरी सिल्क मॉथ है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, एंड द सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ मलबरी सिल्क मॉथ इज कॉल्ड मलबरी सिल्क। और मलबरी सिल्क बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है एंड इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, और वो बहुत अलग डिफरेंट कलर्स में डाई भी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू चेंज फ्रॉम कोकून टू सिल्क और रेयरिंग सिल्क फॉर्म कैसे होती है ये सब बताऊंगी। थैंक यू।